یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، یہ غلط ہے. ٹائم ہیلز نتھنگ. جتنا وقت گزرتا جائے گا وہ ایموشنز، وہ گلٹ کے ہوں، ہرٹ کے ہوں، سیڈنس ہو، ریجیکشن ہو، وہ ری انفورس ہوتے جاتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک، ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ. پی این وائی ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم 100 سے زیادہ کورسز کو کرواتے ہیں اور بہت سے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے بچے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں. آئی ٹی کی سکلز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بہت سی لائف سکلز ہم سکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ گھر بیٹھ کر اپنی سکلز کو یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو پروموشن کی طرف لے کر آ سکیں، پلس اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فائنینس میں بھی بہتر کر سکیں. تو پی این وائی کے تھرو ہم ایسے میسیجز آپ تک، ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. آج کا شو بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہمارے ایڈلٹس کے لیے، جو لوگ اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں. اس میں بیسک چیز ہماری آتی ہے اپنے آپ کو لیڈ کس طرح سے کریں گے، اپنی ذات کو پہچانیں گے کیسے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ہم دوسروں کو لیڈ کیسے کریں گے. ایسی کون سی لیڈرشپ سکلز ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں. اور سر سم ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ کالجز میں ہی یہ ریلیشن شپ لانگ ٹرم چلتے ہیں. ہم 4 سال رہے، بی ایس کیا، ایم ایس کیا، اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوا ہمارا بریک اپ ہو گیا. اب وہ چیز کسی بھی انڈیویجول پہ، اینڈ پلس وہ بوائے ہے یا گرل ہے، ان پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. ہمارے ہم بڑے ٹراماز میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بریک اپ ہو گئے، اب اس بریک اپ سے میں سروائیول کیسے کروں اور کیسے نکلوں، اور کچھ لمبے عرصے تک وہ اسی بریک اپ کے ڈیوریشن میں بھی رہتے ہیں. یہ جو بریک اپ ہے یہ لا محالہ ان ایوری کیس اٹ ہیپنس، کیونکہ وہ انوائرمنٹ چینج ہو گئی، وہ یونیورسٹی کالج کا سیشن ختم ہو گیا، اور وہ وٹ ایور اٹ واز دیٹ ریلیشن شپ اٹ آلسو اینڈز اپ ان اے بریک اپ. اور وہ اس میں نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف لڑکی کا ہوگا، لڑکا جو ہے، دونوں دے گو تھرو ایدر ڈپریشن، ریجیکشن ہے، ہرٹ ہے، گلٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ ان کا جو فیوچر میں بھی ہے وہ ان کی ہیسیٹنسی ہوتی ہے، لیک آف کمٹمنٹ ہوتی ہے فار فیوچر ریلیشن شپس، اور وہ ہر چیز کو ایک جھجک سے، ایک اس سے سیلف ڈاؤٹ سے دیکھتے ہیں. اور جس کی وجہ سے ان کا جو سیکنڈ وہ ہے ریلیشن شپ کا، اور ٹو انٹر انٹو اے میرج، وہ ان کے بہت سیریس ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور ان کے ایشوز ہوتے ہیں. انلیس کہ وہ ریزالو کیے جائیں، وہ لوگ ایون اگر وہ شادی بھی کر لیتے ہیں، اٹ از ناٹ اے لانگ لاسٹنگ، کوئی اچھی ہارمونس ریلیشن شپ نہیں ہوتی. سر ایک اسٹگما ہے، ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ جو درد ہے، وہ جو بریک اپ کے بعد کے ایموشنز ہیں، وہ سیٹلڈ ہوتے جاتے ہیں. تو از اٹ ٹرو، یہ چیز ہے ریئلٹی میں یا نہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، یہ غلط ہے. ٹائم ہیلز نتھنگ. جتنا وقت گزرتا جائے گا وہ ایموشنز، وہ گلٹ کے ہوں، ہرٹ کے ہوں، سیڈنس ہو، ریجیکشن ہو، وہ ری انفورس ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، unless you do something about it. آپ کوئی کسی سے ہیلپ لیں، کسی سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لیں، کسی لائف کوچ سے ہیلپ لیں، وہ سی بی ٹی کے پروسیس کے تھرو ہو، ہپنو تھراپی کے پروسیس کے تھرو ہو، این ایل پی کے پروسیس کے تھرو ہو، وہ آپ کے نیگیٹو ایموشنز آپ سے نکلیں، وہ ایموشنل نمبنس جو ہو گئی ہے اس سے آپ باہر نکلیں، وہ جو آپ کی مائنڈ فاگنگ ہو گئی ہے اس پروسیس سے آپ باہر نکلیں. اس ایشوز سے، ان چیزوں سے آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے تھرو اے اسٹرکچرڈ پروسیس، خود بخود چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور اس میں جو چیز ہے وہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی کزن سے بات کی تھی، میں نے اپنی مدر سے بات کی تھی، میری بیسٹ فرینڈ ہے. یور بیسٹ فرینڈ از اے بیسٹ فرینڈ بٹ شی از ناٹ اے سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے، کسی سرٹیفائڈ پروفیشنل سے ہیلپ لیں.
आजकल जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि जी गपशप थेरेपी या लाफ्टर थेरेपी, इट डजंट हील एनीथिंग। वक्ती तौर पे आप खुश हो जाएंगे, एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे, आप इमोशनली चार्ज हो जाएंगे। इवन आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी अटेंड करके आए तो आप यूफोरिक होते हैं, Yes. अच्छी मूवी देख के आए तो 2 दिन आपको अच्छा लगता है, बट यू गो बैक टू द सेम पोजीशन, यू आर इन द सेम रट एंड एट टाइम्स यू गो इवन डीपर Yes. unless the root cause is addressed. unless the root cause is addressed, वो प्रॉब्लम रहती है और वो परसिस्ट करती रहती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ जाता है, प्रॉब्लम कम नहीं होता। ठीक। तो सर ये जो रिलेशनशिप अब्यूसिव की तरफ चला जाता है, समटाइम्स हम देखते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप हो गया कि अब्यूसिव लैंग्वेज फिजिकल तक आ गए और हमें समझ नहीं आ रहा अब हमने इससे ओवरकम कैसे करना है। समटाइम्स हम किसी प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी कुछ ऑडियंस हैं, वो डरते हैं किसी से बात करने में। तो ऐसी ऑडियंस के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो घर में रहते हुए अपने आप को इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकालना चाह रहे हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कैसे, ऐसे कौन सी पॉजिटिव अफर्मेशंस उन्हें गाइड करें? सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज जो मैं अपने अक्सर क्लाइंट्स को और उनके पेरेंट्स को कहता हूँ, और वो लेसन है उनके लिए जो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, कि बेटी की तलाक हो जाए कोई बदनामी नहीं है, दुख नहीं है। ठीक है, सदमा जरूर पहुंचता है, लेकिन उससे कम है कि बेटी की लाश घर है। एग्जैक्टली। ठीक है, बेटी तलाक लेके घर आ जाए तो जिंदा है वो, आप उसको उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, किसी बिजनेस में लगा सकते हैं, कल को दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन आप जब आंखें बंद कर लेते हैं, आपको पता होता है कि हमारा दामाद जो है वो हमारी बेटी के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, फिजिकल वायलेंस तक बात चली गई है और मारपीट होती है, उसका जेवर उसने अगर छीन लिया, उसका घर अपने नाम लिखवा लिया, हर चीज होगी, तो फिर व्हाट मोर इंडिकेटर्स डू यू वांट? आपको और क्या चीज चाहिए? ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं। अच्छा, ये जो साइंस होते हैं, टेल टेल साइंस, ये आपको शुरू में ही पता चलना शुरू हो जाता है। शादी के चंद हफ्तों के अंदर आपको पता चल जाता है, जब वो कहते हैं कि जी अपना जेवर दे दो, हमने अपने लॉकर में रखवाना है। भाई, लॉकर में आपने अपने किस लिए रखवाना है? आपका अकाउंट नहीं आप कर सकते मैनेज? लड़की के नाम पे क्या लॉकर नहीं खुल सकता? मतलब आजकल लड़कियां पायलट्स हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स हैं, दुनिया की कौन सी चीज है जो नहीं कर रही लड़कियां, तो वो क्या बैंक अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकती? ठीक है ना। आमतौर पे वो पहले जेवर ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो उसके नाम पे कोई जायदाद होती है या कुछ और होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फाइनेंशियली इतना वीक कर देते हैं और टोटली डिपेंडेंट कर देते हैं हस्बैंड के ऊपर या इन लॉज के ऊपर, कि उस बेचारी के पास चारा ही कोई नहीं होता, और वो फिर वो फिजिकल अब्यूज सहती रहती है एंड शी गोज थ्रू इट। मेरी स्पेशलिटी जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में है। और स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है? स्टॉकहोम सिंड्रोम ये है कि जब कोई आदमी कैद हो जाता है, किसी की कैद में होता है, तो वो कुछ अरसे के बाद वो कैदी जो है कैद करने वाले के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेता है, और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, रोटी दे दी किसी ने टाइम से, किसी ने कंबल दे दिया, किसी ने पंखा लगा दिया, किसी ने कुछ कैद में। यही चीज रिलेशनशिप्स में भी है। और मेरी स्पेशलिटी चूंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम है, मैं लोगों को गाइड करता हूं कि ये चीज ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं। जब वो लाइन आती है, मैं उनको क्रॉस नहीं करने देता, उनको कहता हूं कि अब आप ये रिलेशनशिप खत्म कर दें, कि इट हैज बिकम अब्यूसिव नाउ। वर्बल से अब ये फिजिकल वायलेंस पे आ गई। लोगों को होता है मैं क्या करूं, मैंने कहा ये आपको किसी दिन मार देगा, और होता है उन केसेस में कि वो इतनी बुरी तरह मारते हैं कि पसलियां तोड़ दी, बाजू फ्रैक्चर कर दिया, उसका सर दीवार में मार दिया। तो उससे ज्यादा वायलेंस अगर आपने देखनी है और आपने बर्दाश्त करना है, यू वांट टू लिव इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज मैं उनको गाइड करता हूँ, इससे आगे नहीं, इससे आगे आपके लिए अब्यूसिव रिलेशनशिप है, काइंडली यू कम आउट ऑफ इट। और सर ये चीज आपकी फिजिक को तो डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन जो आपको मेंटली ट्रॉमा में लेकर जा रही है, हम उस चीज को फिर नहीं करते हैं।
हम ये कहते हैं कि जी बच्ची को तलाक हो गई है, ठीक है, अब इसे ड्रामे करने हैं हमारे घर में रहकर। यानी ये स्टिग्मा इतना ओवरवेलम किया गया है कि हम उसकी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते, उसको उस चीज से निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी, अब जिस तरह रिसेंट एक इवेंट हुआ है, आपने सुना भी है कि एक बच्ची ने एक, हालांकि वो सब इंस्पेक्टर थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है, और वो भी उसने वहां एक मैसेज भी कोट किया है कि बच्ची जो है, मेरे वालिदैन को मैसेज दिया कि मेरी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें और उनको किसी जिम्मेदार शख्स को दें। तो ये चीज, इस पे आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैंने जैसे शुरू में बात की कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये अंडरस्टैंड करें कि उनकी बेटी जो है वो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा नहीं है कि आपने पार्टी ए ने पार्टी बी के साथ किया है और वो हमेशा के लिए अब वैसे ही होगा। जब तक वो एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजार रही है, उसके इन लॉज और उसका हस्बैंड सपोर्टिव हैं, उसकी वेलबींग में, उसकी ग्रोथ में, उसके जो है वो नॉर्मल लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, तब तक तो वो रिलेशनशिप और वो मैरिज ठीक है। लेकिन अगर वो जाके आपको लगे कि बेटी जो है बात ही नहीं करती किसी से, कमरे में बंद हो गई है और वो दिन ब दिन जो है वो शी इज गोइंग इनटू डिप्रेशन, वो पता चल जाता है बड़ी जल्दी। माँ बाप एक नज़र उनको देखने में पता चल जाता है, हमारी बेटी तो ऐसी नहीं थी, बहुत वो तो खिलखिला के खेलती थी, हंसती थी, बोलती थी, अब अचानक ये चुप क्यों हो गई है, इसको चुप क्यों लग गई है, ये सारा वक्त खामोश क्यों रहती है। तो ये बड़े सिंपल साइंस होते हैं। घर पे उसको इनवाइट करें तो वो नहीं आती, ईद पे बुलाएं तो वो नहीं आती, और आती है तो हस्बैंड साथ आता है, थोड़ी देर के बाद ले जाता है, उसको घंटे 2 घंटे से ज्यादा ठहरने की इजाजत नहीं, अकेले आने की इजाजत नहीं, माँ बाप को मिलने की इजाजत नहीं। तो ऐसी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होती और लोगों का आम ख्याल होता है कि कुछ अरसे के बाद ठीक हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद वो ठीक नहीं हो जाएगा, कुछ अरसे के बाद वो जो हस्बैंड है और ज्यादा खराब हो जाएगा और ज्यादा अपने वो जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर है उसमें वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वो उसका वो जो भी टेंडेंसीज है, क्योंकि उसे लगेगा कि यार आगे से तो रेजिस्टेंस ही कोई नहीं मिल रही है, आगे से कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तो वो कहते हैं बस चलो तो चलता रहेगा सिलसिला। सिंपल सी बात है, जो बंदे का पुत्र है वो डे 1 से बंदे का पुत्र है, और जो नहीं है बंदे का पुत्र वो कभी भी बंदे का पुत्र नहीं बनेगा। बिकॉज यू कैन सी कि ये यार इसका आदमी का क्या है, ये रिस्पेक्ट करता है सबसे पहले अपनी बीवी का, फिर उसके ओपिनियंस का, फिर उसके घर वालों का, फिर फादर का, मदर का, वो उनके लिए उठता है, दरवाजा खोलता है, उनके लिए कुछ करता है, या वो कहता है कि ये क्यों आए हैं हमारे घर में। अगर कोई शख्स ये कहता है ये हमारे घर क्यों आए हैं, ये किस लिए आए हैं मिलने के लिए, या वो कहता है जी तुम क्यों इतना वो खाने पकाने कर रही हो, तरद्दुद कर रही हो, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि ही डजंट लव हिज वाइफ एंड ही डजंट केयर अबाउट हर पेरेंट्स या फैमिली। तो ऐसे बंदे के साथ गुजारा नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी यूथ के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी कि आप अपनी बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनको समझें, और बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्टली सर, हमारे ऑडियंस को, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को आप क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? पॉजिटिव मैसेज ये है जी कि जिंदगी मिलती है एक दफा, तो उसको गुजारें उस तरीके से कि यू आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल। आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि आप कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नौकरी की, घर गए, जाके खाना खाया, सो गए, टीवी देखा, सो गए, ये तो हर कोई करता है। आप क्या चीज ऐसी कर रहे हैं कि कल को आपके जाने के बाद इस दुनिया में आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे, या पीछे 10 मरले का या 1 कनाल का प्लॉट छोड़ के जाएंगे। मेरा तो ये कहना है और मैं इसी में बिलीव करता हूं कि आप ऐसे काम करके जाएं कि आपके नाम को लोग याद करें, आपके काम को लोग याद रखें, और आपके किए हुए कामों के लिए लोग आपको सारी जिंदगी दुआएं दें। इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक दुआ चाहिए होती है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको कभी भी कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, ना उनको कोई परेशानी आने दें। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आप एक मीठी जुबान से तो उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप उनको विजिट तो कर सकते हैं।
آپ جا کے ان کو مل تو سکتے ہیں, وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ آپ کو ساری زندگی پڑھانے لکھانے میں اور یہاں تک پہنچانے میں انہوں نے ایک بڑا میجر رول پلے کیا. اٹس ناؤ یور ٹائم ٹو پے بیک. That's great. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایک میسج ہے, ایک لرننگ ہے, اگر آپ لوگ اس سے سیکھنا چاہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.